باہمی روابط۔ بچوں، ہم نے یسوع کی پیدائش، مسیح ہونے کی علامات، اس کے ہاتھوں رونما ہونے والے معجزات، اس کی بیان کردہ تمثیلوں اور ماحول میں موجود لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق کا مطالعہ کیا تھا۔ اب ہمیں بہت سے ایسے اسباق سیکھنے ہیں جن میں یسوع کی تعلیمات، وعدوں، آنے والے زمانہ کی خبرداری اور پیشن گوئیوں کی معلومات ملیں گی۔ اہم ترین بات تو ہمارے اور یسوع کے درمیان رشتہ ہے، کیونکہ یسوع کی طرف سے کی جانے والی نجات کی تکمیل کا مقصد ہی اس رشتہ کی استواری ہے۔ اگر یسوع کے ساتھ یہ رشتہ نہ سمجھا جا سکے تو بائبل محض کہانیوں کی ایک کتاب ہی لگے گی۔ بچوں، کوئی کہانی جیسے ہی سن لی جائے اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، مگر یسوع کی محبت کی سچی گہرائیاں ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف لے آتی ہیں، جسے آسمانی باپ نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب ہم یسوع سے سیکھیں تو خوب دل لگا کر توجہ سے سیکھنا چاہیے، اور اس ساری تربیت کو اپنی روحانی ترقی کا زینہ بنانا چاہیے۔ معافی کے متعلق یسوع کی تعلیمات۔ یسوع چاہتا ہے ہم دوسروں کی غلطیاں ہر دم معاف کرتے رہا کریں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا یسوع ہمیشہ یہی سمجھاتا رہا، ہمیں وہی بات کہنی چاہیے اور وہی سب کرنا چاہیے جس میں خدا کی رضا شامل ہو۔ بعض اوقات جب ہم تو یسوع کی رضا پر عمل پیرا ہوں مگر دوسرے ہمیں یسوع کے اچھے شاگرد سمجھنے کی بجائے کمزور اور معمولی سمجھتے ہوئے اپنے لیے ترن والا سمجھنے لگیں جسے نہایت آسانی سے نوچا کھسوٹا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں چاہیے کہ پہلے کچھ مارکا بازی کر لیں اور یسوع کی پسند کے کام بعد میں کر لیں گے؟ اس طرح کم از کم لوگ جان تو لیں کہ انہیں ہم سے الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ بچوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں یسوع نے کیا کہا تھا۔ لوکا 17 باب 3 سے 4 آیت۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ بچوں، یسوع نے فرمایا اگر کسی کا رویہ آپ کے لیے ناگوار ہو تو آپ کو چاہیے اسے اس کی غلطی سے آگاہ کر دیں۔ وہ آپ کی دل آزاری پر معذرت خواہ ہونے کے بعد پھر آپ کو تیش دلائے اور پھر معذرت چاہے۔ ایسے میں یسوع کے فرمان کے مطابق آپ کو ہر بار اسے معاف کرنا ہوگا۔ واہ! بچوں، یوں تو بہت مشکل ہو جائے گی، ہے نا؟ انسان میں صبر اور حوصلہ تو کم ہی ہوتا ہے۔ آخر کس طرح کوئی ہمیشہ زیادتی برداشت کرے گا؟ مگر یسوع چاہتا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے دوسروں کو معاف کرتے رہا کریں، اور دل میں کسی قسم کی کدورت کو جگہ نہ دیں۔ سچ تو یہ ہے اس سے بھی بڑھ کر مشکل حالات میں معاف کرنا ہوگا۔ یسوع نے فرمایا، یسوع یہی چاہتا ہے ہم ہر دم معاف کرنے پر تیار رہیں۔ مرکز 11 باب 25 سے 26 آیت۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ بہت خوب!
बच्चों, अब तो यसू ने और भी मुश्किल फरमाइश कर दी। यसू का फरमान था, अगर हमें किसी की तरफ से की गई ज्यादती याद ही आ जाए तो भी उसे माफ कर दिया जाए। पहली तलब तो ये थी, जितनी बार कोई माजरत चाहे उतनी ही बार उसे माफ कर दिया जाए। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, खुदा के हजूर दुआ में खड़े होने की सूरत ये है कि जिसने हमसे माफी नहीं भी मांगी मगर उसकी तरफ से की गई ज्यादती याद ही आ जाने पर उसे माफ कर दिया जाए। यसू ने बड़े ही संजीदा लहजा में फरमाया, दूसरों को माफ कर देने पर ही खुदा हमारे कसूर माफ फरमाएगा। अगर हम हर दम दूसरों पर तैश खाए रहें, दिल में इंतकाम पूरा करने के तरीके सोचते रहें, तब खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। बच्चों, यसू हमेशा माफ कर देने पर इतना इसरार क्यों करता है? वजह ये कि जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो ऐसे में हमारे दिलों पर ताले पड़े रहते हैं। चाहे हम दूसरों की दिल आजारी करें या दूसरे हमारी, हम नाशाद हों, खफा हों, बात तक ना करना चाहते हों, तो हमारा दिल जकड़ा रहता है, हम इस पर ताला लगाए रहते हैं। चुनांचे ऐसे में खुदा भी हमसे बात करनी चाहता हो तो अपने जकड़े दिलों की वजह से हम उसकी आवाज तक सुन नहीं पाते। रूहे पाक हमारे दिल को कुछ करने या कुछ कहने का इशारा करे तो उसकी बात हमारे दिल की पथरीली दीवारों से टकराकर पलट जाती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल खुदा से दूर भटक जाते हैं। यसू ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। मत्ती 18 बाब 18 आयत। इसका मतलब है जब हम किसी को माफ करते हैं तो दरअसल उसे खोल देते हैं, उसे मौका फराहम करते हैं कि वो खुद को बदले, अपनी हरकतों पर तौबा करे और आसमान की बादशाही में दाखिल हो। इसके बरक्स जब हम किसी को माफ नहीं करते, हमारे मजाज की तलखी, तैशो कीना और लान तान दरअसल अपने मुखालिफ के दिलो जान को जकड़े और बांधे रखते हैं। यूं उसका दिल बोझ तले दबा रहेगा, आजाद नहीं होगा। ऐसे में उसके दिल में खुदा का काम रुक जाएगा। यसू चाहता है हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दूसरों को आजाद कर दें, मगर जब हम ऐसा नहीं करते तो लोगों के दिल जकड़े रहते हैं। यूं तो बहुत कम लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। ये बात यकीनन आसमानी बाप के लिए नाराजगी का बायस होगी और वो हमें मुआफ नहीं करेगा। माफ कर देने के मौजू पर यसू ने और क्या फरमाया? यसू चाहता है हम माफी की जुस्तजू करें। मत्ती 5 बाब 22 से 26 आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है
اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ بچوں، یسوع نے سختی سے تاکید کر دی کہ آپ بلا جواز کسی سے ہرگز خفا نہ ہوں اور نہ ہی کسی کو احمق قرار دیں۔ عبادت کے دوران اگر آپ کو یاد آ جائے کہ کوئی آپ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوگا تو ایسے میں یسوع کا حکم ہے خدا کے حضور اپنی عبادت بعد میں کر لیں، مگر پہلے جا کر اس شخص سے صلح کریں جو آپ کی وجہ سے دکھی ہے۔ تب اپنی خطا کی معافی پا لینے کے بعد خدا کی عبادت کو واپس پلٹیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھوں دکھ اٹھانے پر یہ شخص خدا کی راہوں سے دور بھٹک جائے۔ بچوں، خدا کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کہ آپ اس کے حضور کیا کہتے ہیں، بلکہ آسمانی باپ کے لیے وہ الفاظ زیادہ اہم ہوتے ہیں جو ہم اس کے پیارے لوگوں کے سامنے ادا کرتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ یسوع کی طرف سے سکھایا گیا۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ یوحنا 12 باب 48 آیت۔ بچوں، یسوع نے ہمیں ایک نہایت سنجیدہ نصیحت فرمائی۔ ہمیں لازمی طور پر اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہمیں نصیحت کے آگے سرکشی کی بجائے جھگڑے نمٹانے ہوں گے، ورنہ ہم بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسی لیے دوسروں کے ساتھ راہ و رسم کے متعلق یسوع نے ہمیں سکھایا۔ دوسروں کے ساتھ راہ و رسم کے متعلق یسوع کا درس۔ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ یسوع نے ہمیں تنبیہ فرمائی۔ متی 18 باب 6 سے 7 آیت۔ لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ کہ لوگ تو ہمیں مسیحی سمجھتے ہوں مگر ہم دوسروں پر چیختے چلاتے رہیں، جھوٹی قسمیں کھائیں، ان پر لام تان کرتے رہیں، لڑائی جھگڑوں میں کھوئے رہیں، ہر وقت بے تکے جھوٹ تراشا کریں۔ تو ایسے میں جو کوئی بھی ہمیں دیکھے گا یہی سوچے گا یسوع پر ایمان رکھنے میں کوئی بہتری نہیں۔ یہ مسیحی تو گنڈے بدماشوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بچوں، ایسے میں کون یسوع پر ایمان لائے گا؟ یہی وہ انداز ہیں جنہیں یسوع نے دوسروں کے لیے ٹھوکر کہا۔ ایسے لوگوں کے لیے یسوع نے فرمایا، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ بچوں، یسوع نے جب یہ بات کہی تو وہ سخت طیش میں تھا۔ ہماری بری مثال دیکھ کر ممکن ہے تھوڑے سے لوگ یسوع پر ایمان لے بھی آئیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں،
मगर दूसरों पर लान तान करने, चोरी चकारी, नोच खसोट, हर किसी को मुसीबत में फंसाने और दानिस्ता झूठ तराशने जैसी बदफितरती की वजह से बहुत से लोग यसू पर ईमान लाने से बिदक जाएंगे। यसू तो गुनहगारों के लिए जान दे ही चुका है, मगर आपके बुरे चाल चलन की मिसाल ऐसे लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिले से भटका देगी। क्या आपको नहीं लगता यसू आप पर बरहम हो जाएगा? चुनाचे यसू यही चाहता है हम पहले उन लोगों से ताल्लुक बहाल करें जिन्हें हमने दुख दिए, उनके दिलों से तकलीफ दूर करें, ताकि वो दिली मसरत से यसू पर ईमान लाएं। हमारे लिए ये बात खुदा के हजूर की गई दुआओं से बेहतर है। रोजाना बाइबल पढ़ने और संडे स्कूल हाजिरी से बढ़कर है। खुदा हर किसी को आसमान की बादशाही में आते देखना चाहता है। खुदा नहीं चाहता हम अपने मुंह से महज उसकी सताइश करते रहें, मगर उसके लोगों की जानों से बेफिक्र हो जाएं। बच्चों, जो लोग दूसरों पर लानत करते, उनका नाक में दम किए रहते, उनके लिए अजियत का बाइस बनते या अपने मुखालिफों को खुदा की निजात से दूर भटका देते हैं, उनके मुतल्लक यसू ने फरमाया कि वो जहन्नुम की आग के हकदार होंगे। वाह! बच्चों, शायद आपने इस बात को संजीदगी से ना लिया हो, शायद आपका ख्याल हो दूसरों पर जंजलाने, हर किसी को नोचने खसोटने, मुखालफों पर लानत करने से आप तो जहन्नम में नहीं जाएंगे। शायद आप सोचते हो जो लोग काहिल और कुंद ज़हन हैं, कोई अहलियत नहीं रखते, उन पर लान तान करने में क्या हरज। शायद आप सोचते हो आप ऐसी बातों पर किसी कड़ी सजा के हकदार तो नहीं ठहरेंगे। मगर बच्चों, आए देखते हैं यसू ने क्या कहा। दूसरों में ऐब ना निकालो। लोका 6:37 से 38 आयत। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दूसरों की आओ भगत के बारे यसू की तलकीन। मामूली लोगों के साथ हकारत से पेश ना आए। बच्चों, यसू ने जो रूहानी असूल दिया ये है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। जितनी ज्यादा आप दरगुजर करेंगे, दूसरों से जितनी ज्यादा मोहब्बत रखेंगे, सब्रो बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, तो खुदा भी आपको बढ़ चढ़ कर ये सब कुछ देगा। अगर आप लोगों के कसूरवार ठहरे, उन्हें जदोकोब करते रहे, उन्हें ठोकरों में रखा और खुदा के सिखाए अंदाज के मुताबिक लोगों से रवाबत ना रखे, तो खुदा भी उन नेमतों और बरकतों को रोक देगा जो उसने आपके लिए संभाल रखी थी, हत्ता के आप हयाते अबदी से भी महरूम रह जाएंगे। खुदा की नजर में तमाम इंसान बेशकीमत हैं। खुदा ने उन्हें अपनी छवि पर बनाया है। अगर हम मामूली लोगों की हकारत करते रहे या उन्हें बुरा भला कहते रहे,
तो इसका मतलब होगा हम उस खुदा की हकारत और उसकी जिल्लत के मुर्तकब हो रहे हैं जिसने इनको खलक फरमाया था। यसू ने तो खबरदार कर दिया था। मत्ती 18 बाब 10 से 11 आयत। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। लोका 9 बाब 48 आयत। जो कोई इस बच्चा को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। खुदा चाहता है हम उन लोगों तक आसमानी बाप की मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं जो उम्मीदों का दामन छोड़ चुके हैं। यसू की ख्वाहिश है हम उन लोगों से मोहब्बत करें जो मुआशरा में कम हैसियत और जिंदगी की राहों में पीछे रह गए हैं। बच्चों, अगरचे यहाँ खुदा का कलाम मामूली लोगों की हकारत से बचने का दरस देता है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते जो कुछ भी देखते हैं सब की खबर आसमानी बाप को देते हैं। मगर साथ ही ये बात कितने सुकून का बायस भी है कि जब दूसरे आपको हकीर समझें, आपको जदोकोब करें, बुरा भला कहें, जबकि आप अपने दिफा से भी कासिर हों, तो इन सब मराहिल में खुदा सब कुछ देख रहा होता है। जब आप अपनी कम हैसियत और बेमायगी पर अफसुर्दा हों तो ये भी याद रखें यसू सब देख रहा होता है और वो आपके मामला में इंसाफ को अमल में ला कर रहेगा। यसू रास्त खुदावंद और ऐसा खुदा है जो हर दम आपका मुहाफिज है। जब कभी आप पर कोई भी ज्यादती हो, आपको अपने हकूक के लिए किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं। यसू हरगिज नहीं चाहता आप दूसरों से दस्तोगिरेबां हों। यकीनन ये भी उसे गवारा नहीं कोई आप पर जबरो ज्यादती कर पाए। यसू यही चाहता है हम दूसरों को मुआफ कर दें और हर बात उसके फैसलों पर छोड़ दें। जब हम दूसरों के बंधन खोल देंगे, रूह पाक उनसे बात करेगा, उन्हें सिखाएगा। लोगों के तौर तरीके खुदा की रजा के मुताबिक होते जाएंगे। तब यकीनन आइंदा कभी वो आपको ना सताएंगे। यसू ने फरमाया, मत्ती 10 बाब 42 आयत। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। बच्चों, बाज़ औक़ात हम दूसरों को अपने सामने हकीर समझते हैं, कम उम्री और बेमायगी की वजह से नाअहल करार दे देते हैं। मगर यसू का कहना है ऐसे मामूली अफराद का खैर मकदम करने वाले दरअसल उसका खैर मकदम करते हैं। वाह, यसू कितना बावकार है। मगर वो खुद को नरम मजाज और मामूली लोगों के हम पल्ला समझता है। यसू की नजरों में मामूली लोगों का मकाम ऐसा ही है जैसा यसू खुद। चुनांचे जब हम ऐसे मामूली लोगों को तकलीफ देते या उनकी मदद करते हैं तो दरअसल ये सलूक यसू के साथ कर रहे होते हैं। चुनाचे यसू ने हमें मजीद यही सिखाया, उन्हें बुलाओ जो तुम्हें सिला देने के अहल ना हो। लोका 14 बाब 13 से 14 आयत। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों,
अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। बच्चों, हमारे आसमानी बाप की नजर इस बात पर होती है क्या हम दूसरों का खैर मकदम करते और उनकी कदरों मंजिलत का ख्याल रखते हैं या नहीं। जब हम दूसरों से खुदा की रजा के मुताबिक बर्ताव करते हैं, इसका मतलब ये होता है हमने खुदा की गर्मजोश मोहब्बत और उसकी तसल्ली जरूरतमंदों तक पहुंचा दी। ये अंदाज हमें खुदा की मोहब्बत भरी रोशनी और फलदार दरख्त बना देता है। यूं हमारा वजूद खुदा की ताज़ीम जाहिर करता है। यसू ने कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो बदला ना दे सकते हों, उन्हें जरूरत की चीजें देंगे, उनका हर तरह से ख्याल रखेंगे, खुदा ऐसे नेक दिल लोगों को अपने हाथ से नवाजेगा। यीशु ने ये भी फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। मगर हमें खुदा के रूहानी असूल याद रखने होंगे। बरकत पाने के असूल, यानी उन छोटों और मामूली लोगों की मदद करना होगी जो इस काबिल भी नहीं कि आपके एहसानों का बदला दे पाएं। तभी खुदा आपको इनामो इकराम से मालामाल करेगा। जो आपको दुख दे उसे बख्श दें, आसमानी बाप आपको माफ कर देगा। किसी में कीड़े मत निकालें, किसी पर लानत मत करें, दूसरों की किरदार कशी ना करें। खुदा आपकी हिफाजत करेगा। कोई भी आपके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं कर पाएगा। बच्चों, खुदा का रूहानी असूल है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। चुनांचे जब हम दूसरों को खूब देते हैं तो क्या खुदा भी हमें खूब लाद कर नहीं देगा। अगर हम आसमानी बाप के साथ अच्छा लेन देन सीख लें तो लाजमी तौर पर दूसरों को खूब जी भर के सब अच्छी चीजों में शामिल करेंगे और खुदा भी कई गुना बढ़ा के फिर से अपनी नेमतों से हमें लाद देगा। इसी वजह से यसू हमें दूसरों को माफ करते रहने का दरस देता है, क्योंकि जब हम दूसरों को आजाद करते हैं तो ऐसे में हमारा आसमानी बाप भी हमें खूब माफ करता है। जब हम दूसरों के लिए बरकत मांगते हैं, दो गुनी बरकतों के अहल ठहरते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा रूहानी असूल मुझे बहुत ही पसंद आया। हम जो कुछ तेरी खातिर दूसरों को देते हैं वो सब तू हमें लौटा देता है। जब हम दूसरों की कोताहियां माफ कर दें, तू भी हमारी बदकिरदारियां बख्श देता है। तेरा फरमान है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। तूने ये भी कहा, जब हम किसी का खैर मकदम करें, खास तौर पर किसी ऐसे मर्द का खैर मकदम जो हमें बदला ना दे सके, तो दरअसल हम तेरा खैर मकदम कर रहे होते हैं। प्यारे बाप, तेरे साथ मामलात रखना तो बहुत ही मुनाफे बख्श काम लगता है, मगर ए प्यारे बाबू,
तू लोगों को नवाजने में बहुत देर लगा देता है। कभी तो यूं भी होता है कि किसी से नेकी करके सोचता ही रह जाता हूँ। तूने मुझे 2 गुना करके लौटाया ही नहीं। कभी किसी की मदद करता हूँ तो कोई भी गैर मामूली बरकत नजर ही नहीं आती। यहाँ तक के दूसरों को माफ कर देने पर सब ही मुझे डरपोक समझने लग जाते हैं। प्यारे बाप, हम तेरी खातिर जो भी ईसार, जो भी आमाल करें, क्या तू वाकई हमारी सारी मेहनतों का सिला 2 गुना कर देगा? प्यारे बाप, तू तो जानता ही है मेरे पास बहुत सा माल और दौलत नहीं। अगर मैंने जो कुछ मेरे पास है दे डाला और तूने फौरन ही मुझे लौटाया नहीं तो मैं कल लाश हो जाऊंगा। तू ये भी जानता है मैं दूसरों से बहुत मोहब्बत तो नहीं करता, और जब करूं भी तो बदले में दूसरे मुझे बुरा भला ही कहते हैं। तब मुझसे ये मोहब्बत निभाई नहीं जाती। प्यारे बाप, मेरी मोहब्बत जल्द हिम्मत हार देती है और सब्र मेरा साथ छोड़ देता है। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी कोशिश कर सकता हूँ। जल्द ही सब छोड़ छाड़ निकल लेने की ख्वाहिश भड़क जाती है। जब तेरी तरफ से इनाम नहीं पाता, तुझ पे भरोसा छोड़ देता हूँ। प्यारे बाप, मुझे मालूम है मेरा ईमान बहुत ही कमजोर है। तेरे शागिर्द भी तो मेरी ही तरह अक्सर शक में पड़े रहते थे, मगर ऐ आसमानी बाप, तू सच्चे दिल की दुआएं तो खूब सुनता है। ऐसी दुआएं तेरी तवज्जो खींच लेती है। तो ऐ प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा। दूसरों के लिए मेरी मोहब्बत, सब्र और इस्तकामत देने का जज्बा, तेरे नाम से आने वालों का खैर मकदम, ये सब मेरे वजूद में खूब बढ़ चढ़ के समा जाएं। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा। मैं जान लूं तेरे कलाम पर चलने में तेरे वक्त मुकर्रर पर मेरा इनाम मुझे जरूर मिलेगा। और ऐ प्यारे बाप, यीशु ने मुझे सिखाया है अपने सताने वालों को माफ कर दूं। जिन्हें मैंने सताया उनसे भी सुलह कर लूं। प्यारे बाप, मुझे तहम्मुल सिखा दे, मेरी मदद फरमा। दूसरों में कीड़े निकालना छोड़ूं, अपने गुनाहों पे नजर करूं, गुरूर और नाज की अकड़ फूं छोड़ूं। मेरी मदद फरमा के लोगों के पस मंजर और उनके जज्बात की कदर किया करूं। मेरी मदद फरमा के लोगों से सुलह और अमन के रवाबित रखूं। प्यारे बाप, तेरा फरमान है जैसा सलूक हम दूसरों से रखेंगे वैसा ही तुझसे पाएंगे। प्यारे बाप, मुझे तेरी बरकतें चाहिए। दुआ है तेरी मदद पाऊं, दूसरों तक भी तेरी बरकतों की राहें सीधी कर दूं। मेरी यीशु के नाम में दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी और
पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मत्ती 7 बाब 2 आयत।